Hello students, how are you? Now this video is for class 11, chapter 2, accounting terms. You can take a screenshot of this. It may help you if you want to. Or you can email me to send you the PDF which I have used here for this shooting this video. Alright, so you must be wondering, we have to learn the accounting terms, and you see here three statements here: trading account, profit and loss account, and balance sheet. Trading, P&L, balance sheet. So these are the name of three final accounts. So what are these final accounts doing here in chapter 2 only, where I have to teach you just the meaning of the few accounting terms. So students, what I believe in order to know the meaning, the definition of the various accounting terms, if I also show you the placement of these items in our final accounts, then probably it will create a better understanding. I think so. So that's why I have drawn these three statements and written few items here. They are not complete, there are many items missing, and which we will learn in the final accounts chapter later on. So let's learn the meaning of some of the important terms. So if you remember the first video where I taught you the definition or the process of accounting, there I told you that accounting is a process of identifying the business financial transactions or financial, okay, and through vouchers, and then we record them in the journal book in the form of journal entry, and then we classify them in the ledger book. Then we prepare the trial balance, and with the help of trial balance we prepare three final accounts, and these three final accounts are drawn here: trading, P&L, and balance sheet. Alright, so let's understand the meaning of the few of the terms. Let me zoom the video. So first of all, I will explain you the terms which are written on the left hand side of this video. Okay, the very first term what we can see is the financial transactions and the business transactions. So financial transactions, it is written here, they are the transactions which are measurable in monetary terms. Alright, so in the business there are so many types of events and transactions takes place, but an accountant is supposed to record only the financial character transactions. Alright, supposingly there is a conflict between the management and the employees, or the customer relations related issue is there, public relations issue is there. So accountant has got nothing to do with them, because these events, they are not of financial character. At the same time, our financial transaction, it should be a business transaction also. What does it mean? So business transactions are those financial transactions which are related to business. एक transaction financial तो है, लेकिन उसको business से related भी होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? सपोजिंगली प्रोप्राइटर जो कि ओनर है, कई बार वो अपने पर्सनल खर्चे वो बिजनेस के थ्रू ही कर देता है. सपोजिंगली द फीस ऑफ हिज चाइल्ड इज पेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म. तो ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन तो है, फीस जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चा है. ठीक है, तो समझ आए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, बोथ ऑफ देम. Now account, the next term is account. An account is a T-shaped format drawn for a specific item, drawn in ledger book with the help of journal entries. ओके, तो जो यहाँ पर अकाउंट बने हुए हैं ये अच्छा है. वैसे तो फाइनल अकाउंट है, लेकिन अकाउंट के मैं समझा सकती हूँ. ये टी शेप, डेबिट से लेके क्रेडिट तक पहली लाइन खींची, फिर बीच की सेंट्रल लाइन खींची, तो ये इसको कहते हैं टी शेप फॉर्मेट. तो एक लेजर अकाउंट, कोई भी लेजर अकाउंट किसी भी चीज़ का, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, और ये इवन फाइनल अकाउंट्स, तो दे ऑल आर द टी शेप फॉर्मेट. एंड यू नो दिस वन अकाउंट इज ओपन फॉर वन स्पेसिफिक आइटम. ठीक है, एंड इट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्रीज. पहले हम जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, वहाँ से एक एक आइटम पिक करते हैं, उसके नाम का लेजर बुक में लेजर अकाउंट खोलते हैं. So we can say it's a summary of the one specific type of transactions. One account is a summary. Capital. Capital is the amount which is invested by the owner in the business. It is known as owner's equity or internal liability of the business. Capital. वैसे तो capital word से सभी लोग वाकिफ़ हैं.
कैपिटल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है, सब लोग समझते भी हैं इसको। तो मैं आपको इसका प्लेसमेंट दिखाने के लिए मैं इसका जो व्यू शिफ्ट कर रही हूँ। यस, बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम मैंने कैपिटल शो किया हुआ है 5 लाख। सो वॉट एवर मनी इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस, दैट इज नोन हिज कैपिटल। तो कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, ऑलराइट। तो सपोजिंगली हमारे बिजनेस फॉर्म का नाम है ओमेगा फाइबर्स। ओमेगा फाइबर के ओनर का नाम सपोजिंगली मंजीत है, ठीक है। तो मंजीत ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो 5 लाख रुपीज़ जो कैपिटल अकाउंट है, ये ओमेगा फाइबर की मंजीत के प्रति टुवर्ड्स द मंजीत इट्स इंटरनल लायबिलिटी। तो हम 3rd चैप्टर के वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस मैन दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस का नाम क्या है? ओमेगा फाइबर। बिजनेस ओनर का नाम है मंजीत। सो दीज 2 आर सेपरेट एंटिटीज़। एंटायर रिकॉर्ड कीपिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ ओमेगा फाइबर, नॉट इन द नेम ऑफ मंजीत। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है मंजीत का, ये ओमेगा फाइबर की इंटरनल लायबिलिटी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बैलेंस शीट है, किसकी बैलेंस शीट है? ये ओमेगा फाइबर की बैलेंस शीट है। ये P&L अकाउंट किसका है? ओमेगा फाइबर का P&L अकाउंट है। समझ गए? इस बारे में हम और गहराई से समझेंगे अगले वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स withdrawal of the money and the goods by the owner from the business. It includes even some personal expenses. So drawings means the withdrawal of money or the goods by the owner from the business. ओनर अपने ही बिजनेस में से अगर पैसा निकालता है, कैश विड्रॉ करता है या बैंक से पैसा निकालता है, या अपने बिजनेस में प्रोड्यूस होने वाले कुछ गुड्स को अपने घर ले जाता है फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और अकाउंटेंट उसको एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड करेगा, ड्राइंग ऑफ द ओनर, ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर। और किस तरीके से शो करेंगे उसको? लास्ट में एट द ईयर एंड पे हम जो कैपिटल है उसमें से देखो यहाँ ड्राइंग को माइनस किया हुआ है, फिर उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो ड्राइंग्स की वजह से ओनर की कैपिटल तो रिड्यूस होगी, ठीक है। ऑलराइट, द नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। इट इंक्लूड्स liabilities are the obligations or the debts that an enterprise has to pay at some time in the future. That is, it is the amount owed by the business. ठीक है, तो liabilities are the obligations or debts of an enterprise. किसी भी बिजनेस की जो देनदारियाँ होती हैं, जो लोन्स वगैरह लिए हुए होते हैं, जो डेट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जो ऑब्वियसली फर्म फ्यूचर में पे करना चाहती है और करेगी भी, उसको फर्म की लायबिलिटी कहते हैं। ऑलराइट, इट इज़ द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। तो बिजनेस की लायबिलिटी, ओमेगा फाइबर की लायबिलिटी है ये। ओमेगा फाइबर को ये लायबिलिटी पे करनी होती है। ये लायबिलिटी 2 तरह की हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़, दूसरा है करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। इन दोनों लायबिलिटीज़ का बेसिक डिफरेंस देखें। नॉन करंट लायबिलिटीज़ आर द बिजनेस डेट्स टू बी पेड यूजुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद जो लायबिलिटी बिजनेस को पे बैक करनी होती है, वो उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। और करंट लायबिलिटीज़ आर द बिजनेस डेट्स पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और जो 1 साल के भीतर भीतर हमें लायबिलिटी पे करनी होती है, उनको करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। चलो बैलेंस शीट में देखते हैं हम। तो बैलेंस शीट में देखो, मैंने बैंक लोन अकाउंट को एनसर्कल किया हुआ है। बैंक लोन जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। ये बैंक लोन जनरली 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हम लेते हैं, जो 5 साल, 2 साल, 3, 10, 15 जो भी, ठीक है। और बाकी के ये जो आइटम है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनअर्न्ड इनकम, बैंक लोन के नीचे वाले जितने ये आइटम हैं, ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। इनकी पेमेंट हमें 1 साल के भीतर भीतर करनी होती है मैक्सिमम। ऑलराइट, अब हम वीडियो के
अपने फाइनल अकाउंट्स के राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को समझेंगे पहले. ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन, असेट्स. Assets are the economic resources of an enterprise which can be expressed in terms of money. They are owned by the business for the business. All right. So assets are the economic resources of an enterprise. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम असेट्स कहते हैं, यानी कि उन रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, तब वो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं. और वो रिसोर्सेज बिजनेस के होते हैं. दे आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पस. तो जितने भी ओमेगा के नीचे बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी जितने भी असेट्स वगैरह हैं वो किसकी असेट्स है. हु ओन देम? मंजीत डज नॉट ओन देम, इट इज़ द ओमेगा फाइबर हु ओन्स देम. जैसा कि मैंने पहले बताया, सारी अकाउंटिंग ओनर के नाम में की जाती है. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग सारी अकाउंटिंग, सारे रिकॉर्ड कीपिंग सब बिजनेस के नाम में किया जाता है, ना कि ओनर के नाम में. तो हु ओन्स द असेट्स? द ओनर, द प्रोप्राइटर. अच्छा, असेट्स भी दो तरह की हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट. करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them into cash within 1 year. तो करंट असेट्स में वो असेट्स है जो कि बिजनेस कन्वर्ट कर देगा कैश के अंदर उन्हें 1 साल के भीतर. तो 1 साल के अंदर बिजनेस उन असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है. सो सच असेट्स आर कॉल्ड करंट असेट्स. आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ देम इन बैलेंस शीट बिलो, बट फर्स्ट रीड द डेफिनेशंस. Non-current assets. Non-current assets are those assets which are held for the long-term use in the business and are not meant for resale. तो non-current assets को हम business में क्यों रखते हैं? हमारा उनका long-term purpose का use होता है और उनको हमने sale के लिए नहीं खरीदा कम से कम. We haven't bought them for the resale purpose. They are held for the purpose of producing the goods or rendering the services in order to earn the revenue and the increase in profit earning capacity of the business. ठीक है, तो ये assets हमने business में खरीदी हैं goods produce करने के लिए या services render करने के लिए. इन assets को resale करने का बिल्कुल भी हमारा purpose नहीं है. And the main motive of these non-current assets is कि they help us, they help us earning the revenue. And they also help in increasing the profit of the firm. ठीक है, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इन नॉन करंट एसेट की वजह से इंक्रीज हो जाती है. नॉन करंट एसेट्स दो तरह की हैं. अच्छा, नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स लिखे हुए नीचे यहाँ पे. अब हम बैलेंस शीट की तरफ भी आ गए तो आई कैन शो यू द आइटम्स. सो नॉन करंट एसेट्स दो तरह की है. इसमें फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, 3 लिखे हैं नॉन करंट एसेट के. तो फिक्स्ड एसेट्स है एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में देख लो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने नॉन करंट. नॉन करंट का मीनिंग होता है भाई लॉन्ग टर्म, जो करंट नहीं है तो वो नॉन करंट है. यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारी फर्म ने की है बाहर, हमारी फर्म के पास प्रॉफिट इकट्ठा हो गया था, तो उस प्रॉफिट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारी फर्म बाहर किसी भी थर्ड कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स खरीद सकती है, बैंक में एफडी अकाउंट खोल सकती है, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीद सकती है, कुछ भी हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट. तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने इस पर्पज़ से की है कि उन्हें 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हम रखेंगे, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. इसके बाद जो ये फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं. तो फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन तो हम ऊपर देखिए, 2 तरह के टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 2 तरह की है, टेंजिबल और ये नीचे इंटेंजिबल. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स which have physical existence, that is they cannot be touched, they can be touched and seen. तो जो tangible fixed asset होती है इनका physical existence है, we can touch them, we can see them. And the intangible fixed assets, they are those assets which do not have physical existence and so they cannot be seen or touched. Okay, all right. तो इनके एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये हमारे टेंजिबल फिक्स्ड असेट के एग्जाम्पल है. इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनको हमने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस में खरीदा है, इनकी हेल्प से हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज रेंडर करेंगे.
और हमारा मेन पर्पस इनको रीसेल करना नहीं है। ऑलराइट, तो और गुडविल पेटेंट के ऊपर अलग से ब्लू सर्कल मारा है, ये हमारा एग्जाम्पल है इनटेंजिबल फिक्स एसेट का। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है बट दे डू एग्जिस्ट। ऑलराइट, इसके बाद जो नीचे की असेट्स लिखी हुई है पेटेंट के नीचे सारी, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश इन बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी हमारी करंट असेट्स हैं। इसमें से कुछ करंट असेट ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, कैश और बैंक की तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन बाकी के असेट्स को लाइक द क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड कैश विद इन 1 ईयर करना होता है, इसीलिए इनको करंट असेट्स कहते हैं। तो करंट असेट्स वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड कैश विद इन अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 1 ईयर। तो एक अच्छा कंपैरिजन है, ये करंट लाइबिलिटी इधर है, ये लाइबिलिटी की पेमेंट करंट लाइबिलिटी वी शुड बी एबल टू पे देम बैक विद इन अ ईयर, और ये इधर नीचे करंट असेट्स है, वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट देम इनटू कैश मैक्सिमम विद इन अ ईयर। तो होप आपको डिफरेंस समझ में आया है। तो एक और असेट्स मैं बता दूं, फिक्टिशियस असेट्स यहाँ लिखा हुआ है। फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स विच neither have any real value or nor any physical form but they are called assets on the basis of some legal grounds। तो कुछ ऐसी असेट्स होती हैं, असेट साइड में शो करते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है और दे डोंट एग्जिस्ट, उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं है, अभी हम उन्हें बेचे, मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिक जाए। ऑलराइट, तो फिर भी उन्हें हम असेट्स कहते हैं ऑन द बेसिस सम लीगल ग्राउंड्स। तो मैंने दो कुछ यहाँ खर्चे लिखे हुए हैं, एक एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस और ये अंडर राइटिंग कमीशन। मेरे पास ये जगह नहीं थी, ये दोनों आइटम मैं असेट साइड में लिखना चाहती थी। ये दोनों एग्जाम्पल है फिक्टिशियस असेट्स के, एग्जाम्पल और भी है, ये दो ही लिखे हैं मैंने यहाँ। तो ये वास्तव में कुछ ऐसे खर्चे हैं, ये खर्चे हैं हमारे, ठीक है। तो कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस की वजह से हमें इनको बैलेंस शीट में कुछ समय के लिए शो करना होता है। तो देखिए, तो इसीलिए ये असेट्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम इन्हें फिक्टिशियस असेट का नाम दे देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी असेट विच विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो अभी इस वीडियो में इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऐसी भी टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। एक चीज़ अब आप ध्यान से देखिए, हमारे बिजनेस के लिए ये सारे जिधर आइटम है ये वाले सारी असेट्स हैं, ये सारी असेट्स हमने अरेंज की अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और इन असेट्स में जो पैसा हमें लगाया है हमने, पार्शली तो आया ओनर की कैपिटल से और बाकी का बैंक लोन से लेकर नीचे तक ये सारा हमारा बोरोड फंड्स है। तो जो ये ऊपर वाले हैं कैपिटल और ये नीचे है सारा हमारा बोरोड फंड्स, तो ये हो गया C फॉर कैपिटल एंड बोरोड फंड्स को हमने कहा L फॉर लाइबिलिटी। तो यानी कि हमारी सारे बिजनेस के असेट्स को हमने कैसे फाइनेंस किया, कुछ पैसा ओनर ने अपना लगाया जिसको कैपिटल कहा, ये पैसा ओनर ने अरेंज किया, बोरो किया, तो ये लाइबिलिटी कहलाया। तो मैंने लास्ट में एक इक्वेशन लिखी, उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सारी बिजनेस की असेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है, बिजनेस की कैपिटल और उसके लाइबिलिटी को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड थी, असेट साइड थी। लाइबिलिटी साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऊपर वाला पार्ट है कैपिटल, नीचे वाला ये सारा पार्ट है बैंक लोन से लेके नीचे तक लाइबिलिटीज़। ओके, तो आपने यहाँ पर नोट कीजिए, मैंने कैपिटल के अंदर ड्राइंग माइनस की हुई है, नेट प्रॉफिट को ऐड किया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट आया कहाँ से था, थोड़ा सा और कुछ एक टर्म्स इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। लर्न तो आप बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये नहीं समझना, हम ये नहीं सीख रहे अकाउंट कैसे बनता है, हम मीनिंग सीख रहे हैं कुछ टर्म्स के। सबसे पहले देखिए सेल्स अकाउंट हम किस लिए खोलते हैं, तो सेल्स अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ गुड्स। जिन गुड्स के लिए हमने बिजनेस खोला है उन्हें सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न, इफ द गुड्स व्हाट वी हैव सोल्ड they are returned by our customer, so we record them in a separate account that is called sales return, ठीक है। इधर आ जाओ, परचेजेस अकाउंट रिप्रेजेंट द परचेजेस ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल। अपने मेन गुड्स बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल खरीदने होते हैं, तो उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस। सो परचेजेस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली द परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड ओनली द सेल्स ऑफ गुड्स। If there is a purchase return, what we purchase, we are returning back। हमने जो खरीदा हम वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें और बाकी सब नहीं करना, ये हमारी इनकम साइड थी। अभी हमें क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, यस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखा है। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, इन्वेंट्री, ठीक है। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस
you know, the inventory consists of 3 type of items. One is raw material, number 2 is semi finished goods, number 3 is finished goods. ठीक है, साल के आखिर में हमारे पास हर तरह के गुड्स बच सकते हैं, कुछ तो रॉ मटेरियल होंगे, कुछ सेमी फिनिश्ड है, कुछ फुल्ली फिनिश्ड है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक. अगले साल यही क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बन जाती है ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ओपनिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है. तो ये चेन हमारी चलती है. तो ओपनिंग स्टॉक को इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं. अच्छा, यहाँ पर ये पूरी इनकम थी मेरी, इस पूरी इनकम में से सारे खर्चे मैंने माइनस किए, तो हमारा प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सो ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द एक्सपेंसेस. ठीक है, ऑलराइट. सेल्स और ये जितने सारे खर्चों को ऐड कर दें तो इनके डिफरेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. तो कैसे डिफाइन करें? ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर इट्स कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड. इसको हम ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं. मैंने इनकम वर्ड यहाँ लिखा है, ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है हम ये अगले अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. यहाँ पर इस ग्रॉस प्रॉफिट में हमारी कुछ और बाकी की इनकम हुई तो हमने वो ऐड कर दिया. ठीक है, और इसमें कुछ बाकी खर्चे हमने माइनस किए, तो फिर हमारी एक और इनकम आई, नेट प्रॉफिट. मैं फिर बता दूं, आप ये मत सोचना ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग बता रही हूँ. नेट प्रॉफिट हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में जब हमने कुछ और इनकम भी यहाँ ऐड कर दी, ये सारी इनकम हो गई हमारी. इन सभी इनकम्स में से कुछ 3-4 खर्चे और माइनस किए, तो अब जो हमारी इनकम आई उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी कहेंगे. तो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि इनकम इज ऑफ 2 टाइप, ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम, या फिर प्रॉफिट इज ऑफ 2 टाइप, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ओके, राइट. तो मैं दिखाना चाहती थी कि ये कहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट उनका प्लेसमेंट दिखा रही थी मैं आपको यहाँ पे. ओके, इसके अलावा अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे बहुत ज़रूरी बतानी है. आप अपने अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ उनका नाम लिखा है, डेफिनेशन या कुछ लिख तो नहीं पाई मैं. वो ये है, इस पर ध्यान दीजिए. एक्सपेंडिचर वर्ड है, तो एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ 2 टाइप, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर. इसी तरीके से रिसीट्स, रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप, रेवेन्यू नेचर रिसीट्स एंड द कैपिटल नेचर रिसीट. ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच वी रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विच वी रिकॉर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सो दे आर द revenue nature expenses. Revenue nature expenses are incurred very oftenly and we derive benefit from these expenses only for one accounting year. इनका benefit एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा and they are incurred every year, every month, again and again. And where do we record these revenue nature expenditures? Here. Some of them we record in trading, some of them we record in P&L. In रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स का दूसरा नाम हो गया एक्सपेंसेस. इन्हें एक्सपेंसेस भी इन्हीं को कहते हैं. अब आप समझिए, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट के अंदर हम जब भी इतनी असेट्स के नाम दिए हुए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, गुडविल, पेटेंट, ये वाली सारी असेट्स, इवन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. सो वेन एवर वी स्पेंड द मनी टू बाय दीज असेट्स, सो दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर. We derive benefit from the capital nature expenditure for many years. एक साल से ज़्यादा समय के लिए इन खर्चों से हमको बेनिफिट मिलता है. ठीक है, ओके. अब है रेवेन्यू नेचर रिसीट. अब यही वाले पहले कैपिटल नेचर रिसीट कर लेते हैं. लिखा हुआ है ना, रिसीट भी 2 तरह की है, रेवेन्यू नेचर रिसीट, कैपिटल नेचर रिसीट. कैपिटल नेचर रिसीट देख लो. वैसे तो हम ये असेट्स खरीदते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, इनको रीसेल करना हमारा पर्पस नहीं, बट किसी वजह से हमने इन्हें रीसेल किया, तो जो पैसा हमारा आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल नेचर रिसीट. सो हाउ डू वी डिफाइन कैपिटल नेचर रिसीट? बाय द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, वॉट एवर मनी वी रिसीव, दैट इज कॉल्ड कैपिटल नेचर रिसीट. अब लास्ट बचा है हमारा रेवेन्यू नेचर रिसीट. तो रेवेन्यू नेचर रिसीट हमारी सबसे ऊपर है, ये सेल्स. ठीक है, सो बाय द सेल ऑफ गुड्स और बाय रेंडरिंग द सर्विसेज, वॉट एवर रेगुलर इनकम वी अर्न, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर रिसीट. तो रेवेन्यू नेचर रिसीट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस, इसके अंदर फीस, कमीशन, रॉयल्टी, वो सब भी आ जाता है जिस तरीके का बिजनेस है. ठीक है, सो आई होप आई कुड एक्सप्लेन नॉट ऑल बट सम ऑफ द टर्म्स. अभी भी कुछ और भी वर्ड्स के मीनिंग थे वो मैंने नहीं बताया, तो अगर
नेक्स्ट वीडियो में हम उनको बताएंगे. थैंक यू सो मच.